Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jai Om Vishnupad Brahmams Parivajakacarya Sutra Shastri Srimad Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन पीपीडी फादर श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि गो all glories assembled devotees all glories assembled devotees all glories assembled all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Jnana-timirandasya Jnana-shalakiya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, The Son of Drona, Punish, text number 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suta Vacha Brahmanadyam Saraswatyam Brahmanadyam Saraswatyam Ashrama Paschime Tate Ashrama Paschime Tate Samya Prashaiti Prokta Samya Prashaiti Prokta Rishinam Shatravardhana Rishinam Satravardhana Suta Vacha Brahmanadyam Saraswatya Ashrama Paschime Tate Samya Prashaiti Prokta Rishinam Shatravardhana Suta Vacha Brahmanadyam Saraswatya
आश्रमा पश्चिमे तते सम्यप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धना। So read please. Sutavacha Brahmanadyam Saraswatya Samyaprashaiti Prokta Rishinam Satravardhana. Anyone else? Sutavacha Ashramah Parishme Tate Samyaprashaiti Prokta Rishinam Satravardhana. Sutaha Sri Suta Uvacha said, Brahmanadyam, on the bank of the river, intimately related with Vedas, Brahmanas, saints, and the Lord. Saraswatyam, Saraswati, Ashramaha, cottage for meditation. Paschime, on the west. Tate, bank. Samyaprasha, the place named Samyaprasha. Iti, thus. Prokta, said to be. Rishinam, of the sages. Satravardhana, that which enlivens activities. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Suta said, on the western bank of the river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samyaprasha, which enlivens the transcendental activities of the sages. Everyone can repeat after me. Sri Suta said, on the western bank of river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samyaprasha, which enlivens the transcendental activities of the sages. तो श्रीमद् भागवतम के ये पहला स्कंद और सातवां अध्याय में कथा प्रसंग होगा जो द्रोणाचार्य के जो पुत्र है उसको दंडित किया जा रहा है। तो अध्याय शुरू होता है। सूत गोस्वामी जी पहले कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी की विशेषता बताया गया। प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड में दिया गया है। ब्रह्मनाद्य, सरस्वती को ब्रह्मनाद्य कहा गया है और इसलिए कहा गया है क्योंकि बताया गया है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंटीमेटली रिलेटेड विद वेदास, ब्राह्मणस, सेंट्स एंड द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर जब भी बात होती है, चर्चा होती है कि हम लोग सरस्वती नदी के तट पर संतों का समागम हुआ, तो मतलब जहाँ पे भगवान की चर्चा होगी वहां भगवान की उपस्थिति हो जाएगी, संतों का समागम हो जाता है। ब्राह्मण की विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ द ब्राह्मण? इज हम्बल और क्लीनलीनेस और समोदमा तपः शौचम। ओके, और नदी के तट के संबंध में क्या बताया जाएगा? पठन पाठन यजन याजन। तो यहाँ बताया गया है ब्राह्मणा का कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिया जाता है कि प्रभु आप यू कैन कम मोर दिस साइड सो दैट एल्डरली पीपल, जो लोग चेयर नहीं नीट करते आप लोग भी आगे आ जाते, वहां पे चेयर रखते हैं।
लद के लोग बैठ जाएंगे। या प्लीज कम दिस साइड, मतलब यू कैन पुट फ्यू चेयर्स देयर टू। हाँ वहां पे रख दो चेयर। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और ओके, तो ब्राह्मणस का यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हम चर्चा करना चाहते हैं, या हम पॉइंट इस प्रकार से रेज करना चाहते हैं। ब्राह्मण मीन्स one who is going to be enlivened in Krishna consciousness and enliven others about Krishna consciousness. So whenever brahmanas meet, क्योंकि बताया गया जब भी संत समागम होता है, चाहे नैमिषारण्य में हुआ है, चाहे सरस्वती नदी के तट पे हुआ है, चाहे गंगा जी के तट पे हुआ है, या रामायण में बताया चित्रकूट में हुआ है, तो whatever जब भी ब्राह्मण सब साथ में होते हैं, वैष्णव सब साथ में होते हैं, तो क्या होता है, वे तुरंत कृष्ण भावनामृत में एनलाइवन हो जाते हैं और दूसरे को एनलाइवन करते हैं। मतलब कि अभी हम चैतन्य चरिता, इसके संबंध में चैतन्य चरितामृत से भी पढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन मीन्स नो ग्राम्य कथा बट राम्य कथा। तो ब्राह्मण मतलब ऐसे कैसे आप जानेंगे कि हम ब्राह्मण समाज में हैं या हम भक्तों के साथ में जुड़े हैं? तो ये भक्तों का संगठन है। भक्तों के संगठन में जाइए तो भक्त तुरंत ही ब्रह्म का समोधमा तपा सोचम होता है, यजन याजन पठन पाठन होता है। मतलब दे डिस्कस अबाउट ब्रह्मन, दे डिस्कस अबाउट भगवान परम सत्य। तो इसीलिए यहाँ बताया कि ब्रह्म नाद्यम, सरस्वती नदी को बताया गया ब्रह्म नाद्यम, क्योंकि वो वेद से, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ एकत्र होते हैं वहाँ वेद का चर्चा करते हैं। ब्राह्मण के गुण है भगवान के प्रशंसा करना। साधु संतों का महत्व यही है कि क्यों उन्हें साधु संत कहा जाता है, क्योंकि संत मतलब जो सत्य की चर्चा करता है, और क्योंकि वेदों का चर्चा, और जहां पर भी मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां सत्संग होता है, जहां ब्रह्म का आचरण होता है, ब्रह्म का चर्चा होता है, वहां भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो बताया गया है कि वहां पर ऐसे स्थान पर एक आश्रम था ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन मतलब भगवान से कनेक्ट हो जाना, भगवान का स्मरण करना। मेडिटेशन एक्सटर्नली है पद्मासन में बैठना, आंखों को आधा बंद करना, ये सब। तो हम लोग जब मेडिटेशन बोलते हैं तो हमारे सामने एक दृष्टि आता है, एक सीन आता है। मेडिटेशन मतलब हम कोई साधु को देखेंगे बैठा है। तो मेडिटेशन का मतलब है जहां पर तुरंत भगवान से युक्त हो जाया जा सकता है, जहां पे भगवान के साथ में कनेक्ट हो बोली या, तो जहां पर तुरंत भगवान के साथ कनेक्ट हो जाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति सेवा भी कर सकता है, जैसे सेवा करता है तो वो तुरंत भगवान के प्रसन्नता के बाद कुकिंग करता है, वो भगवान के प्रति तो मेडिटेशन हो जाता है। कुक ऐसे करके बैठता नहीं, ऐसे जब किचन में बैठ जाएगा तो कुछ बनेगा नहीं। कुक हैज टू बी एक्टिव। तो मेडिटेशन मतलब कुक जैसे शुरू करता है, चूल्हा बारता है, पानी चढ़ाता है, श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद लेता है। और राधा रानी का आशीर्वाद क्यों चाहता है? क्यों राधा रानी का आशीर्वाद चाहिए? क्योंकि शी इज द वन हु गिव्स बेस्ट प्लेजर टू कृष्णा। सो द कुक वांट्स द ब्लेसिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी so that the cooking bhoga turns out nice, because only by Radharani's touch it will be acceptable by Krishna, otherwise it will not be. तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। पुजारी आता है, भगवान के श्रृंगार करता है, तो वो जैसे आता है गुरु और राधा रानी का आशीर्वाद लेता है, क्योंकि राधा रानी एंड द गोपीज आर एक्सपर्ट एट ड्रेसिंग कृष्णा। तो दैट्स योर मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब नहीं केवल एकांत में बैठ जाएंगे, आप जो भी कर रहे हैं, यू कम, इवन व्हेन यू कम टू द टेम्पल, you go to Sant Samagam, you start serving. You serve prasadam. What are you thinking? What should you think when you are serving prasadam?
giving Krishna to others. Eh? You are worshipable to me, what else? You are giving Krishna's mercy, what else? Huh? Not we are saving prasadam, how much is saved, we can take away. Saving prasadam, you must think that by serving the Vaishnavas, Krishna will become pleased. Krishna will become. Everything is about Krishna's pleasure. सभी कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए। जब हम भक्तों को सेवा करते हैं या जनता का भी सेवा करते हैं, उनको प्रसाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उससे कौन खुश होता है? कृष्ण खुश हो जाते हैं। प्रभु जी ने कहा कृष्ण का मर्सी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। बट व्हाई डू वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द मर्सी? बिकॉज कृष्ण विल बिकम प्लीज्ड व्हेन ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी बिकम्स connected to Krishna. I don't know how many of you know, we had one devotee here who migrated to Brisbane, Madhu Mangal Prabhu. He was a former police officer. So he became, it took many years to become, yesterday was his memorial service, he passed away in Brisbane. So they asked me to write a eulogy, so I thought, I can write like a homage. So then I remembered how he was a devotee, and it took a lot of time before he became a devotee, but he wanted to be fully convinced. So he joined Krishna consciousness in Krishna Kaliya temple, then he moved to Suva, then when our new temple was constructed, he became the temple commander, and very, very dedicated devotee. I think, ever since when he migrated, he left the vacancy of temple commander and we never filled it. It is like eternal vacancy. So temple commander means, he goes and checks that all the devotees, when it's class time, all the devotees are sitting in the class. When it's Mangalarti time, goes and checks the ashram, everyone is awake and into the Mangalarti like that. So it's very important. Prabhupada made the system, there should be one temple commander. Even here you should have one temple commander who makes sure that everyone is sitting and listening to the class, inside or outside, wherever. But important things first. So the point is that we are distributing Krishna's mercy. So he was very enthusiastic, and as a temple commander, he makes sure he was present in the class, he was present in the Harinam, he was present in the prasad distribution, he was present in the kitchen cooking, assisting with the devotee. He was an elderly devotee, retired, so you don't expect him to cook, but he'd still like to come and hold the chammach and do something like that. And devotees become enlivened. So the point is that Krishna consciousness, when devotees get together, everything we are thinking of serving for the pleasure of Krishna. So anything you do, you serve for the pleasure of Krishna. So then what happens? It's a meditation. So you're meditating. You're thinking of Krishna's pleasure every time. At Samya Prasha. So that's the place in near the bank on the banks of Saraswati, which enlivens the transcendental activities of the sages. Sometimes sages are also marus. Although they are Brahma Bhuta Prasannatma, then sometimes they become sad. You can look at the gopis. The gopis are crying. Krishna has left. If there was no separation, then we would actually separate. Service in separation is called the highest service. It is called Vipralampa Seva. Vipralampa Seva. That's how it happens. So the sages also get enlivens the transcendental activity. So number one, the activities of the sages is transcendental. But sometimes we are doing, chanting is what? What kind of activity? Transcendental activity. Right? But sometimes you are not enlivened about chanting. Even if devotees are all chanting together, someone is sleeping away, it's struggling. So enliven the transcendental activities of the sages. So even the transcendental activities need to be enlivened. It needs to be enlivened. We are in a association with devotees. We are in a perfect situation. But we need to enliven it. Everyone must become very happy. I came to give class here because, Mahasingha Prabhu said to me that, we get, 50 devotees in the morning. I said, wow. Hearing this, I become enlivened. Wow. I want to go and speak there. Not really. Not really. But the point is that we all should become enlivened. Sumukha Prabhu, when he comes, I become enlivened because I know he will ask some questions. He will challenge me by questions and it will only help me
make further advance, because then if I don't know, I have to go and read and find out and give an answer to it. So devotee association is enlivening. We become enlivened. eh? So it should be enlivened. So here Bhagavatam says that that place of meditation enlivens the activities of the sages. So then Prabhupada writes a very nice purport. For spiritual advancement of knowledge, for spiritual advancement of knowledge, हमको लगे सबके पास नॉलेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, तभी हम लोग भक्ति में लग गया है. लेकिन ये नॉलेज को क्या करना है? एडवांस करना है ना. अभी हम लोग के लगे नॉलेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, बहुत अच्छा एग्जांपल है. हम लोग के नॉलेज अभी क्या है? यद करोसी यद यजनासी यद दुहोसी ददासी यद, वट एवर यू ईट वट एवर यू डू इट इज एन ऑफरिंग ऑन टू मी. ये नॉलेज को क्या एडवांस करना है? व्हाट एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज. अभी हम लोग के नॉलेज है कि जो हम करते हैं वो भगवान को समर्पित करो. ये नॉलेज को आगे बढ़ाने का मतलब है कि हम लोग के धीरे धीरे भक्ति में पवित्र होकर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होते 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 हम लोग के कौन स्टेज पे आना है? जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो भगवान चाहते हैं वो हम करेंगे. तो इसीलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं चैतन्य चेतामृत से पढ़ूंगा. होपफुली आई डोंट टॉक टू लॉन्ग. तो कैसे चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी थे, वो जाते चैतन्य महाप्रभु के पास, बोले आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई वांट टू नो फ्रॉम यू. तो पहले हम शरणागत होना चाहते हैं, फिर भगवान कैसे चाहते हैं शरणागत हो वो हमको जानना चाहिए. तो बोला कि उसके लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए अ सूटेबल प्लेस एंड एटमोस्फियर इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. सूटेबल प्लेस नहीं रहेगा, आप भागवतम लेके भागवत गीता लेके घर पे भी बैठ जाओगे तभी एडवांसमेंट रुक जाएगा. एडवांसमेंट के लिए सूटेबल प्लेस और सूटेबल एटमोस्फियर चाहिए. व्हाट इज अ सूटेबल प्लेस एंड सूटेबल एटमोस्फियर? जहां पर where the devotees get together. ये suitable place is साधु संग. तब ऐसे 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल आर्ट में बताया. पहला बताया गया है साधु संग. सो suitable place is साधु संग. तो टेम्पल प्लेस ऑफ साधु संग है. और दूसरा कहाँ हो सकता है? दूसरा प्लेस ऑफ साधु संग कहाँ हो सकता है? जहाँ पे भगवान की उपासना है. दूसरा जहाँ साधु होते हैं वहां सुटेबल प्लेस है. तो टेम्पल में साधु गेदा होते हैं तो ये सुटेबल प्लेस है. और या तो फिर साधु को अपने घर पे बुला लो, सुटेबल प्लेस हो जाएगा. साधु आ जाएगा. स्क्रिप्चर्स बोलता है ना, जिस घर पे वैष्णव के कमल चरण नहीं पड़ा है वो घर नहीं है, वो शमशान है. तो जहां पर भी संगठन करके डिवोटीज गेट टुगेदर वो सुटेबल प्लेस हो जाता है. हम लोग प्रीचिंग प्रोग्राम्स करते हैं ऑल द डिवोटीज. तब ऐसे प्रीचिंग प्रोग्राम्स भी करो तो खाली एक जने जाके एक ढोलक बजा आदमी जाके कर दे प्रोग्राम. जहां ऑल द डिवोटीज शुड गेट टुगेदर. आपके आने से वातावरण सत्संग का बनेगा. आपके आने से वक्ता का भक्ति बढ़ेगा. आपके आने से आपका भक्ति बढ़ेगा क्योंकि और दूसरे भक्तों का संग मिलेगा. तो वैसे इट्स ऑलवेज बोले कि हरि कथा जहां होता है, कीर्तन जहां होता है, वी शुड ऑल कॉन्ग्रेगेट. कॉन्ग्रेगेशनल चांटिंग. चैतन्य महाप्रभु बोला साथ में सब समय साथ. यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन. यज्ञ कीर्तन प्रायर नहीं बोला, यज्ञ संकीर्तन. तो कॉन्ग्रेगेशनल टुगेदर. तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम लोग घर पे देखे भक्ति कर नहीं. हाँ, घर पे रहकर भक्ति कर लेंगे तो थोड़ा कठिन होता है. शायद आप थोड़ा मेंटेन कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे बात प्रभुपाद जी वर्ड यूज कराए फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. जो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सत्संग में जाना पड़ेगा. जो केवल घर पर बैठना चाहता है तो आप भक्ति में लगे रह सकते हो. और सुंदर बात है कि प्रभुपाद का ग्रंथ आप पढ़ोगे तो यू गेट प्रभुपाद एसोसिएशन. लेकिन एक डिफिकल्टी रहेगा. व्हाट वुड बी द डिफिकल्टी? समझने में जब तकलीफ होगा या आप समझकर उल्टा करोगे तो प्रभुपाद भागवतम के पेजेस से नहीं निकल के बोलेंगे यू स्टॉप दैट नॉनसेंस. When you are in the association of devotees, then some devotee can say, okay, no, you got the wrong understanding of it. Everyone fights over Prabhupada से. दो भक्त में कभी कभी झगड़ हो जाता है. बोलता प्रभुपाद ने ऐसे बोला, दूसरा प्रभुपाद ने ऐसे बोला. जब दोनों बात प्रभुपाद बोला है तो दोनों सही है. तो फिर मतभेद कैसा?
हम लोग बोल सकते हैं प्रभुपाद बोले हैं, लेकिन उसका समझ प्रभुपाद का इंटेंट क्या है वो भक्तों के संग में जो आशीर्वाद से सीख सकते हैं. द प्लेस ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ सरस्वती इज स्पेशली सुटेबल फॉर दिस पर्पस. टू एडवांस नॉलेज दिस प्लेस इज स्पेशली सुटेबल, एंड देयर इज अ आश्रम ऑफ व्यासदेव एट सम्य प्राशर. तो वहां पे जो आश्रम है सरस्वती नदी के तट पर और स्थान पर सम्य प्राश पर, वहां पर किसका आश्रम है? व्यासदेव का. श्रील व्यासदेव वॉज अ हाउस होल्डर. व्यासदेव जी गृहस्थ थे, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र हुए. तो वो गृहस्थ थे. एंड आश्रम श्रील व्यासदेव वॉज अ हाउस होल्डर, यट हिज रेसिडेंशियल प्लेस इज कॉल्ड एन आश्रम. तो गृहस्थ थे लेकिन उसका घर को आश्रम बताया गया भागवतम में. यहाँ पर an ashram is a place where spiritual culture is foremost. आश्रम किसको कहते हैं? जहां पे स्पिरिचुअल कल्चर है. स्पिरिचुअल कल्चर क्या है? व्हाट इज द स्पिरिचुअल कल्चर? ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु से, जहां पे ये सब होता है. और हम लोग कोई व्यक्ति भक्ति चौधरी स्वामी महाराज को हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं महाराज बहुत ही वैष्णव कल्चर. क्या देखते हैं हम लोग? क्वालिटी देखते. हम लोग बोलेंगे कि कौन आश्रम इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट. व्हाट स्पिरिचुअल कल्चर आर वी टू कल्टिवेट? कौन स्पिरिचुअल कल्चर हमको सबको कल्टिवेट करना? हमको कोशिश करके हम जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, गुरु पूज कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्या हमको कल्टिवेट करना? ये सब करने से क्या होना चाहिए? जैसे गार्डन में आप फ्लावर गार्डन कल्टीवेट करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट है कि सुंदर सुंदर फ्लावर्स बने. तो हम लोग स्पिरिचुअल कल्चर जब कल्टीवेट करते हैं तो क्या होना चाहिए? यस, क्वालिटीज. द क्वालिटीज इज जैसे बहुत स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, लेकिन हम लोग सेम को सेम क्वालिटीज को, सब क्वालिटी तितिक्षवा करुणिका समोदमा तपा शौचम, जो सब बताया गया है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञानम विज्ञानम और यजन याजन पठन पाठन, ये सब चीज को चैतन्य महाप्रभु एक सम्मिलित रूप में बताया. क्या स्पिरिचुअल कल्चर है? स्पिरिचुअल कल्चर है ऋणादपि सुनी सेना दरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानतेना कीर्तन्या. स्वाभाविक ही नहीं, अमानीना मानतेना. कोई आदमी के लेके जाओ हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. तो आदमी सब देखे ला बोले क्या वेरी नाइस कल्चर, वेरी कल्चर डिवोटी. So when you truly develop this, Bhakti Charu Maharaj, he's always so embracing to everyone. So you look at him, he's talking, he's looking, he's walking, and it's all love spilling over. So that's a result of spiritual culture. तो आश्रम मतलब जहां पे स्पिरिचुअल कल्चर. आश्रम मतलब ये कहीं पे लिखा है आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, वहां जहां पर ये कल्चर इज फोरमोस्ट. मतलब अभी हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरा एक डेवलपिंग दिस कल्चर इज फोरमोस्ट. वी पुट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट, वी ट्राई एंड डेवलप. दिदीक्षवा, कभी कोई कुछ बोल दे तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम फट से मांगो जवाब दो. ऋणादपि हो जाओ, थोड़ा सह लो, थोड़ा दिदीक्षवा सह लो, चुप रह लो. तो धीरे धीरे यहाँ मतलब कहा है, व्हाई डू वी वांट टू डू दिस? वी वांट टू डू दिस because we want to develop spiritual culture. Spiritual culture is foremost. Proving my point is not foremost. Right Vaishnava behavior is foremost. That's how you should see. Because at the end of the day, Krishna looks at the Vaishnava's quality. He look at the quality. मुझे इस पर याद आता है, स्मरण आता ना, so somebody was writing bad things about Krishna. So then they brought it to Prabhupada to say, Prabhupada, someone is writing bad about it. Prabhupada took the article, Prabhupada said it was bad. Then Prabhupada said, okay, how many times Krishna is written there? This takes a spiritual culture, a person with a spiritual culture. Just on Jnani level, then you say, no, I want to rebut this thing, I want to prove it right, I want to put him into place. And sometimes, it is already said, we do not
What is that? Instruct a faithless person our glory is the holy name. So don't waste time over these people. Develop spiritual culture for yourself. So it does not matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. तो घर चाहे गृहस्था का हो, चाहे एक भिखारी का हो या संत का हो, साधु का हो. The whole Varnashram system is so designed that each and every status of life is called an ashram. तो सब status जो है लाइफ के वो आश्रम है. चतुर्वर्णम मया शिष्टम. तो भगवान चतुर्वर्णम बनाया है. ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. एक्चुअली में सब आश्रम के सिस्टम है जहां पर स्पिरिचुअल कल्टिवेशन इज फॉरवर्ड. और ये पॉइंट मेरे को रिमाइंड कराता है कि sometimes we are in the association of devotees, or we are in part of ISKCON, or we are doing some devotional service. Always remember the foremost thing is we have come to the shelter of Srila Prabhupada and to the shelter of Krishna to become devotees. अपन प्रेम भगवान के पुनः जागृत करेंगे, अपन प्रेम भगवान के प्राप्त करेंगे. Therefore, what others do, what external माया के काम है, अलग अलग ट्रिक बिगो ना, उसके मतलब नहीं है कि हम लोग मांगो उसमें फंस जाओ. यहाँ पे बात हुआ एनलाइवन का. तो जब हम लोग हरदम जानेंगे कि मैं अपना भक्ति जगाने के लिए यहाँ पर आया, मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ. कौन मुझे पूछ रहा था कि दो बात है, दो सिचुएशन है ना. एक है कि हम लोग कहते हैं कि वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. फिर कभी कभी हम लोग प्रवचन में सुनते हैं या प्रभुपाद की बुक में पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है कि बोले प्योर डिवोटी वो है जो कहीं पे भी रहे, भगवान कहीं पे भी रखो हमें, लेकिन हम खाली आपके सेवा में लगे. तो विच ऑफ द टू इज गुड, विच ऑफ द टू इज बेस्ट, विच ऑफ द टू शुड वी डू? द प्रॉब्लम इज कि हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि चाहे भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छा कर रहा है या विनम्रता के कारण इच्छा कर रहा है, भगवान हमें कहीं भी रखो, खाली सेवा में रखो. दोनों के गोल क्या है? मटेरियल कंडीशनिंग से छूट जाओ. लेकिन हम लोग ये एसेंस भूल के अब हम लोग लग गया प्रूव करे में कि हम अच्छा डिवोटी है बिकॉज कि बोला भगवान हमें कहीं भी रखो, हम खाली सेवा करेगा. कभी कभी हम लोग बात भी करता भगवान हमें कोई भी दुख सुख दो, लेकिन जब भगवान छप्पर फाड़ के दुख दे दे तब पता नहीं कि रियली में प्रेयर रहा कि नहीं रहा. तो अगर हम लोग एट द मिनिमम सब टाइम खाली सोचते रहो कि भगवान हम अच्छा से अपना जो खोया हुआ संबंध है वो जागृत करें, और वही संबंध जागृत करे के वास्ते कोई बुक बेचे, कोई हरिनाम करे, कोई प्रसाद बेचे, कोई जप करे, कोई साधना करे, कोई डीटी वर्शिप करे. सबके लक्ष्य क्या है? हम लोग जब सोचेगा कि हम लोग केवल दूसरा कल्याण के वास्ते काम करे लगा है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जन्म सार्थक करी, पहले तो अपन कल्याण कर लो तब दूसरा के कल्याण. जब हमें लोग ने अपन कल्याण कर पाया तो दूसरा. तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि ये सब नहीं करो, मैं बोल रहा हूं ये सब करो ये भाव से कि ये मेरी सेवा है, इसमें मेरा कल्याण होगा. वो 1000 लोगों को प्रसाद मिलेगा वो तो उनका कल्याण हो गई, लेकिन हम लोग वो फोकस हो जाता है कि वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10,000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम ओनली. लेकिन वो 10,000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम इज सपोज टू ब्रिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सोल. वो 10,000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम मतलब नहीं वो लोग के काम है त्रिनादपी हो जाओ. वो 10,000 बांटोगे तुम त्रिनादपी हो जाओगे. दैट्स द प्रोसेस, दैट्स व्हाट इट शुड हैपन. तो बोला कि तो ये spiritual culture, this means that spiritual culture is common factor for all. The brahmacharis, the grihasthas, the vanaprasthas and the sannyasis all belong to the same mission of life. What is the mission of life? Realization of the Supreme. भगवत प्रेम का जागृत करना, ये जीवन के हम लोग के मिशन है. हम लोग के मांगे, हम लोग कोई जवान लड़का लोग सोचे कि हम लोग एकदम मिशन है हमारे, हम यही लड़की शादी करे तो फिर कोई भी हालत से करके रहेगा, कोई से झूठ साज बुलवाएगा, कुछ है. कभी कभी अपन फ्रेंड लोग के भेज के गुंडागर्दी करवाएगा, फिर हीरो के रकम आगे बचा लेगा, जस्ट टू गेन द फेथ, जस्ट टू गेन द फेथ. तो यहाँ पर वही बताया गया है, whatever it takes to realize the supreme.
अमुक सुप्रीम के रियलाइज करेंगे। Therefore, none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखा। कभी कभी हम लोग सोचता है गृहस्थ ऐसे ब्रह्मचारी तो गृहस्थ मटेरियल इसमें है या है वह सन्यासी है। प्रभुपाद जी बोले कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट spiritual culture, we are looking at the spiritual culture, we are looking at reawakening the relationship with Krishna. हम लोग देखता है आत्मा साक्षात्कार, तो कोई जने लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सिचुएशन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज योर सिचुएशन, योर आश्रम, यू मेक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन foremost, जोन भी रकम। तो the difference is a matter of formality on the strength of renunciation. अगर कोई डिफरेंस है तो बोला केवल फॉर्मेलिटी है, on the strength of renunciation. renunciation जैसे सन्यासी है, सन्यासी के लिए घर द्वार नहीं है, गृहस्थ के लिए प्रॉपर्टी है। लेकिन सन्यासी के लिए घर द्वार नहीं है और फुल टाइम सोचते रहे कि हमारे लगे रहता तो अच्छा रहता, सन्यासी नहीं मांगे बिजनेस में लग जाए। सन्यासी मांगे भगवान पे डिपेंडेंस है। गृहस्थ बिजनेस में लगा है, उसके डिजायर्स है, लेकिन प्रभुपाद बोले गृहस्थ के कल्चर मांगे रहे। गृहस्थ और सन्यासी कैसे एक के लेवल पे सके हो जाए? गृहस्थ एन करे है to serve the devotees, to serve the preaching mission, and of course little he has to have to look after himself, because अभी सन्यासी के रकम डिपेंडेंट नहीं है कृष्णा पे, तो he can have some savings for his taking care of himself. But अगर he's putting 25, Nectar Devotions is 25%, I think. So 25%, 25, 50. So 25% for yourself, 25% for family, relatives, still you get 50%. फिर आदमी लोग से बोले 25 हमारे, 25 वाइफ के दो नहीं, अपन आप पे रखे रहो, still save 50. तो आधा मांगो भगवान के प्रचार में लगाओ। So that's why devotees, you spend it, invite devotees in your home, give them prasadam, you sponsor some program, you sponsor some books, you sponsor Harinam, you sponsor food distribution. This is how you must. Yeah, kabhi, some devotees, we sometimes, have devotees who sponsor, devotees coming, sannyasis coming, sadhus coming, we sponsor their airfare, sponsor their accommodation, things like that. So this is all giving you 50% in activities of spreading Krishna consciousness. That's the idea. आधा हम लोग मांगो भगवान के प्रचार प्रसार में लगाओ। तो जैसे यहाँ आप लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, सबको ब्रिंग अप प्लेट करे, सबको एवरी वीक अपन कमाई के थोड़ा पोर्शन ला के यहाँ डिवोटी लोग के सेवा में कर दे, भगवान के ऑफरिंग हो जाए। सो दिस इज स्पिरिचुअल कल्चर एंड दिस इज हाउ वी मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। दिस इज हाउ वी मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो बोले स्ट्रेंथ ऑफ रियलाइजेशन तो केवल मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है। मुझे इस पर एक स्टोरी याद आता है। Quick one. There's a story of one devotee in South India, I think from Sri Sampradaya, right? So there was one Grihastha devotee, I think they were disciples of Ramanujacharya or Yamunacharya or someone. So then what happened was there was brahmachari in the ashram and this एक पति पत्नी थे, वो गृहस्थ शिष्य थे। तो सब लोग बोले ये गृहस्थ लोग जो है ये बहुत अटैच्ड है और हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं। ब्रह्मचारी लोग कैसे होते हैं? वो ब्रह्मचारी लोग आश्रम में रहते हैं, सबके कपड़ा धोआ एक जगह रखाता है। तो एक रोज क्या हुआ, ब्रह्मचारी लोग धोती के पीछे झगड़ रहे, वो बोला वो मेरा है, वो बोला मेरा है। तो गुरुजी ने देखा कि ये शिष्य लोग ये कर रहे हैं, तो शिष्य ने बोला कि देखो मेरे दूसरे जो डिवोटीज है ना, तो गृहस्थ कपल, तो बोला एक रोज शिष्य को बताया कि तुम लोग जाओ उसके लग से जो वस्तु है उसको लेकर आओ। तो ये लोग गए गृहस्थ के घर पे, तो ये दोनों सो रहे थे, पति पत्नी सो रहे थे। तो जो ब्रह्मचारी लोग रात्रि को चोर के माफिक घर में हले, तो ये जान गया और देखा, तो देखा ब्रह्मचारी लोग हैं, तो लोग चुप हो गए। तो ये गृहस्थ सोचता है कि नहीं, तो ये जो पत्नी थी वो पत्नी से करवट लेकर सूती थी, तो ब्रह्मचारी ने क्या किया, उसका जो सोने का ये था वो निकाल लिया। तो सोने का ये निकाल लिया, तो पत्नी जो थी वो करवट ले ली। ब्रह्मचारी लोग सोचे कि ये जाके वो भाग गए। तो सुबह पत्नी ने बताया पति को कि गुरु महाराज के आश्रम से ब्रह्मचारी लोग आए थे और वो मेरा कान वाला लेकर गए।
लेकिन मैंने करवट लिया तो वो भाग गए। तो पति गुस्सा करने लगा, बोला आश्रम में कोई जरूर बहुत बड़ी आपत्ति होगी गुरु महाराज की, इसीलिए ब्रह्मचारियों को चोरी के हद तक उतरना पड़ा। और जब वो ये ले जा रहे थे, तुमने क्यों करवट लिया? ले जाने थे तुमने। तो पत्नी बोली नहीं, वो एक उतारे थे, मैं करवट लिया कि वो दूसरा उतार ले, लेकिन वो डर के भाग गए। तो फिर ये गया गुरु के आश्रम में पूछने के लिए कि क्या आपत्ति है। तो गुरु महाराज फिर दृष्टांत दिया और ये बताया कि देखो गृहस्थ होके कितना रिनाउंस थे और तुम लोग ब्रह्मचारी होके सफरन पैर के धोती के वास्ते झगड़ते हो, लेकिन देखो वो गुरु के आश्रम में सेवा के योगदान देने के लिए। तो दिस इज मैं याद आ गया, भगवान याद कराए। मैं ये एग्जाम्पल प्रिपेयर करके नहीं आया था, लेकिन यहाँ बोला कि ये स्ट्रेंथ ऑफ रिनाउंसिएशन है। तो सन्यासीज आर हेल्ड इन हाई एस्टिमेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रैक्टिकल रिनाउंसिएशन। तो सन्यासियों को ज्यादा मान्यता दिया जाता है कि वो ज्यादा त्यागी है, सब कुछ छोड़कर और इस प्रकार से। लेकिन ऐसे नहीं है कि गृहस्थ ऐसा नहीं हो सकता, एक गृहस्थ भी कंप्लीटली डिटैच्ड हो सकता है। वेरी गुड एग्जांपल इज Mani Mohan Prabhu, blessed to be here with Mani Mohan with us, very dedicated devotee, every time trying to serve devotees, Prabhupada, Guru Maharaj missionary. So like this, we can all become. We don't have to be very big, rich person to do that. Krishna is looking at what you have, and he calculates the percentage from that. भगवान देखते हैं आपके पास कितना है, उसी में से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। आपके पास केवल $100 है, 50 दे दिया, भगवान बोले 50% दे दिया। एक व्यक्ति मिलेनिया है, 100,000 दे दिया, भगवान बोलेगा कितना दिया है? 10% दिया। कौन ज्यादा दिया है? जो गरीब वाला वो ज्यादा दिया, वो आधा दे दिया है, ये तो केवल 1/10 दिया है? तो भगवान ऐसे देखते हैं। तो इसके संबंध में दूसरा एक मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला था चैतन्य चेतामृत से। चैतन्य चरितामृत, I think it's Adi Leela. I'll very quickly finish. I just want to read this for you. It's a very interesting one. Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 6. Chaitanya Charitamrita, Anta Leela, chapter 6, the meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami, and it's around verse 200 and something. Okay. So Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Swarupa," he said, "I entrust this Raghunath Das to you. Please accept him as your son or servant." तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनवान परिवार से थे, वो अपने घर छोड़कर भागकर चैतन्य महाप्रभु गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बारंबार बोले नहीं जाओ, अपन फैमिली सिचुएशन में जाओ, व्हेन द टाइम विल बी राइट। तो फिर अल्टीमेटली अंतलीला में कथा आता, ही कम्स टू चैतन्य महाप्रभु। तो बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, देयर आर नाउ 3 रघुनाथs among my associates. From this day forward, this Raghunath should be known as Raghu of Sarup Damodar. Saying this, Chaitanya Mahaprabhu grasped the hand of Raghunath Das and entrusted him to the hands of Sarup Damodar Goswami. तो उसका हाथ लेकर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में दे दिया। तो बोले जब वो आ रहे थे, I cannot express the affection Sri Chaitanya Mahaprabhu for his devotees. Being merciful towards Raghunath Das, the Lord spoke as follows to Govinda. भगवान बताते हैं रघुनाथ के बारे में। On the way, Raghunath Das fasted and undergone hardships for many days. Therefore, take good care of him for some days so that he may eat to his satisfaction. तो रघुनाथ ना एफर्ट लगाया, फास्टिंग किया, ट्रबल किया। तो भगवान को प्राप्त करने में we have to do तपस्या, तपो दिव्य पुत्र का। You take trouble. प्लेन सेलिंग है तब हैप्पी नहीं रहो, जन्ना आशीर्वाद नहीं मिले। तब जब स्ट्रगल्स रहे, चैलेंजेस रहे, तब जानो हमको स्ट्रगल मिले, तभी तो भगवान के प्रे करता है। तो बोले कि after saying this, Chaitanya Mahaprabhu got up and went to perform his midday duties, and Raghunath met all the devotees present. Having seen the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu upon Raghunath Das, all the devotees struck with wonder praised his good fortune. Chaitanya Mahaprabhu अपने से उसके हाथ पकड़ के स्वरूप दामोदर के,
Govinda offered him a plate of remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Raghunath Das accepted the prasadam with great happiness. Raghunath Das stayed under the care of Sarup Damodar, and Govinda supplied him remnants of Chaitanya Mahaprabhu for 5 days. Chaitanya Mahaprabhu 5 रोज तक इसके इतना रोज फास्टिंग करी तो 5 रोज तक इसके खाना खिलाना, तो 5 रोज तक चैतन्य महाप्रभु के महाप्रसाद प्लेट रघुनाथ दास के मिलता रहा. After finishing their prescribed duties, many servants of Lord Jagannath, who are known as Vishayis, return home at night. If they see a Vaishnav standing and the Simadwar begging alms out of mercy, they arrange with the shopkeepers to give him something to eat. A completely dependent Vaishnava thus chants the holy name of the Lord all day and sees Lord Jagannath with full freedom. It is a custom for some Vaishnavas to beg from the charity booth and eat whatever they obtain, whereas others stand at night at Simadwar begging for alms from the servants. तो दो प्रकार के, एक है जाके भीख मांग के खाते हैं, दूसरा है जो भगवान के मंदिर के द्वार पे होते हैं. तो जो सेवक लोग हैं, जब रात को मंदिर बंद होते हैं तो फिर सब तो नेक्स्ट डे का प्रसाद डिफरेंट होगा, तो सब वो बांटते हैं, तो उसमें से खाते हैं. Govinda said to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das no longer takes prasadam here. Now he stands at Simadwar where he begs some alms to eat. तो बोले रघुनाथ दास अब हम लोग के लगे नहीं खाता है, वो मंदिर के द्वार पे जाके खड़ा हो गया. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he was greatly satisfied. चैतन्य महाप्रभु बोले satisfied हो गए, सुना कि यहाँ पे नहीं खाता है, वो मंदिर के द्वार पे जाके खाता है. तो बोला कि Raghunath Das has done well. He said he has acted suitably for a person in renounced order. A person in renounced order should always chant the holy name of the Lord, and he should beg some alms to eat, and he should sustain his life in this way. A Vairagi, a person in renounced order, should not depend on others. If he does so, he will be unsuccessful and he will be neglected by Krishna. Unsuccessful हो जाएगा, neglect Krishna नहीं attain करेंगे उसके. If a renunciate is eager for his tongue to taste different foods, his spiritual life will be lost and he will be subservient to the taste of his tongue. The duty of a person in renounced order is to chant Hare Krishna Mahamantra always. He should always satisfy his belly with whatever vegetables, leaves, fruits and roots are available. One who is subservient to the tongue and who thus goes here and there, devoted to the genitals and belly, cannot attain Krishna. The next day, Raghunath Das inquired at the lotus feet of Sarup Damodar about his duty. I do not know why I have given up household life, he said. What is my duty? Kindly give my instructions. Raghunath Das never even spoke a word before the Lord. Instead, he informed the Lord of his desires through Sarup Damodar, Goswami and Govinda. So Raghunath Das directly Chaitanya Mahaprabhu से नहीं क्वेश्चन पूछा, वो अपने गुरु जो थे, दीक्षा गुरु जो थे, दीक्षा गुरु जो थे, शिक्षा गुरु एक्चुअली में, because he was under the guide of Sarup Damodar, तो उससे क्वेश्चन पूछा. तब डिवोटी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, because then you can ask a question. कृष्णा को बोले जगन्नाथ जी मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या सेवा करना चाहिए. जगन्नाथ जी थोड़ी बोलेंगे तुम आरती करो, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो डिवोटीज के थ्रू, तो उसके थ्रू क्वेश्चन पूछा. The next day Sarup Damodar submitted to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das has this to say at your lotus feet. तो वो बताता है, तभी से हम लोग सेवा भी करते हैं, तो गुरु के माध्यम से करते हैं ना, गुरु हम लोग की सेवा भगवान को अर्पण करता है. तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चन प्रेजेंट किया. द नेक्स्ट डे I do not know, तो वो बोला क्या, I do not know my duty or the goal of my life, therefore please personally give me instructions from your transcendental mouth. तो बोला कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ये है कि वो भगवान के बोला कि क्या personally give me instruction ना. तो smiling Sri Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath, I have already appointed Sarup Damodar Goswami as your instructor. चैतन्य बोले ऑलरेडी थे, तो भगवान हमारे लाइफ में जो गुरु देते हैं हमको, वो भगवान का देन है, तो हमको जो गाइडेंस लेना है गुरु से पूछना है. कभी बोले हम भी करेगा जब भगवान मांगी तब, अरे गुरु बताया तो मतलब करना है. तो बोले यू मे लर्न फ्रॉम हिम व्हाट योर ड्यूटी इज एंड हाउ टू डिस्चार्ज इट. आई डू नॉट नो एज मच एज ही. चैतन्य बाबू बोले मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना वो जानता है. गुरु एक्चुअली में गुरु डिसाइपल को ज्यादा जानता है ना, साइकोफिजिकल, क्योंकि गुरु आपके चाल चरित्र देखता है, क्या करता है, आप बोलता है नहीं करता है, इस साल बोलता है ये चीज, दूसरा साल नहीं करता है. तो चैतन्य बाबू बोले कि
Swarup Damodar knows more. Nevertheless, if you want to take instruction from me with faith and love, you may ascertain your duties from the following words. तो भगवान बोले, you may ascertain your duties. हम बात से तुम अपन धर्म समझ, अपन कर्तव्य समझे सको तो समझ लो. तो बोले कि क्या बोले, 236 बंगाली पढ़ ली थोड़ा ना. ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे. Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely. अब देखो कौन सी बोले. आमानी माना दहना कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे. Do not expect honor, but offer all respect to others. Always chant the holy name of the Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. Eita sanksepse ami kailon upadesha, swarupe rathani tahar paibe vishesha. I have briefly given you my instruction. Now you will get all the details from Swarup Damodar. भगवान 2 श्लोक बोल के 2 श्लोक में बताया, बोले यही हमारा इंस्ट्रक्शन है और इसके जो डिटेल है स्वरूप दामोदर से पूछ लो. तो फिर आगे बताया, त्रिनाद अपि सुनीते ना तरोरी पर सही सुना, अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि. One who thinks himself lower than the grass, one who is more tolerant than a tree, who does not expect personal honor but is always prepared to give respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. एता सुनी रघुनाथ वंदिला चरण, महाप्रभु कैला तांड्रे कृपा आलिंगना. Having heard this, Raghunath Das offered prayers at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord, out of great mercy, embraced him. भगवान उसके गले लगा ले. पुनः समर्पिला तांड्रे स्वरूपे स्थाने, अंतरंग सेवा करे स्वरूपे रसाने. For Chaitanya Mahaprabhu again entrusted him to Swarup Damodar. Thus Raghunath Das referred very confidential service with Swarup Damodar Goswami. So this is what has happened. तो भगवान बोला कि इस बंदा था, मुझे आज प्रभुपाद लीला में तो एक स्टोरी याद आता है. एक डिवोटी था, वो प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद मैं ये टेम्पल में सर्व नहीं करना चाहता हूँ. प्रभुपाद बोले क्यों नहीं करना चाहते? बोले लीला अच्छा नहीं है. बोले मैं आपके नीचे सर्व करना चाहता हूँ. बोले आप बताओ. मैं प्रभुपाद बोले जाओ वही लीला के नीचे सर्व करो. ये चैतन्य महाप्रभु के कथा रघुनाथ दास गोस्वामी के, तुम्हें ऑलरेडी रघुनाथ स्वरूप दामोदर के हाथ में तुम्हें दे दिया है. ही विल बी योर गाइड. फिर भगवान के लिए भगवान बताइए 2-3 श्लोक भगवान बोला. फिर भगवान बोला डिटेल स्वरूप दामोदर बताए. So this is why again another importance why we need to be in the care of devotees, care of Guru, guidance. Hare Krishna, thank you very much. So we also have Ishta Goshti today. But any questions or comments? Let us close the Bhagavatam class. किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? भागवतम श्लोक से चर्चा हुआ है कि सरस्वती के तट पर व्यास जी के आश्रम में डिवोटीज एकत्र हुए for enlivening their transcendental activity. So we must also get in association with devotees. तभी हमें प्रभुपाद जी बोले कि the devotees should always create festivals. क्योंकि festivals enliven, उत्साह. तो हमेशा उत्सव होना चाहिए. Sunday feast is a उत्सव. Sunday feast is not a burden, it's a उत्सव. Sunday feast उत्सव और बीच-बीच में उत्सव आता है, वो तो है ही. So any questions or comments before we talk about the Govardhan Utsav? Yeah. Best form of devotee association is attend the classes together. Yeah. It's the best form. Class में सब काम हो और सब काम बन. Best form. एसोसिएशन का मतलब है क्या बोलते हैं भगवत गीता में, क्या बताया वो श्लोक, चतुर्थ श्लोक में, मंचिता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम. यहाँ पे हम लोग परस्पर बैठे, वी आर ऑल सीटिंग टुगेदर परस्पर and we are having a meeting. This is actually a Ishta Goshti. Every Bhagavatam class is actually a Ishta Goshti. We are discussing about the Goshti matlab discussion. Ishta matlab about the Isht, about our beloved. Our beloved is Krishna.
सो परस्पर, जैसे काम पे मीटिंग होता है, कोई सब्जेक्ट मैटर सॉल्व करे तो सब लोग मीटिंग में जाए, एक लेवल पे सबको बात करके एक लेवल पे समझ जाओ, तब समाधान हो जाए। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ के समाधान हुई जब हम लोग कथा यंत्र माम नित्यम तुष्यंति चा रमंति चा, परस्पर वी ऑल सिट टुगेदर, दिस इज अ मीटिंग, वी डिस्कसिंग हाउ डू वी मेक दिस थिंग हैपन, how do we advance, how do we learn to advance in Krishna consciousness. And that's exactly what Chaitanya Mahaprabhu was telling. After that, our body is so it is reflecting the Bhagavatam शिव में ही बताया कि जैसे वर्ग से कोई अष्ट में कुंभिन की जैसे परमात्मा स्वामी तस्य परमस्य संस्थिति Haritoshanam, yes, Haritoshanam is the goal of everything. So Bhagavatam, so Bhagavatam again, good point there. Bhagavatam starting there. That's the difference of Bhagavatam with other Vedic literatures. Bhagavatam from the onset, from the start point is saying everything must be done for the Haritoshanam. Everything must be done for Haritoshanam. If it means we need to give up our pride, give it up if it pleases Krishna. If you need to maintain your pride, maintain it if it pleases Krishna. Huh? Just like, even our example, like Goswami's example, somebody came and defeated Rupa Goswami, then Jiva Goswami went and defeated that person on the way. And then when the message came back, Rupa Goswami kicked out Jiva Goswami. He said, this is not the goal of our life. This is not the goal of our life. He was a small boy. He was a small boy, yeah. And he said, this is not our. Just like Chaitanya Mahaprabhu, Keshav Kashmiri, he was going defeating everyone. Then, everyone, Keshav Kashmiri came, people ran away. When he was coming from this side, people would go away from that side. But then Chaitanya Mahaprabhu defeated. So, Haritosha. Okay? So, thank you very much. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. Thank you all very much. You are all wonderful devotees. Gathering, everyone looks very blissful. And